یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی فرانس اور متحدہ عرب امارات کے 3 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں پہنچے۔ فرانس دورے کے دوران دونوں ممالک کے ساتھ متعدد شعبوں میں اشتراک کو بڑھاوا دینے پر ہوگا تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے سائبر جرائم سے نمٹنے کے لیے قومی و بین الاقوامی سطحوں پر باہمی تال میل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت پر دیا زور۔ پروگرام میں کرائم اور سیکیورٹی سے متعلق 2 روزہ G20 کانفرنس سے کیا خطاب۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا حسن طریقے پر جاری۔ 1,56,000 سے زائد یاتریوں نے اب تک پوتر گفا میں کیے شیو لنگم کے درشن۔ اور بھارت کے تیسرے خلائی مشن چندریان 3 کو خلا میں بھیجنے کے لیے الٹی گنتی شروع۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی آج صبح فرانس اور متحدہ عرب امارات کے دورے پر روانہ ہوئے۔ دورے کے پہلے مرحلے میں وزیراعظم فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی دعوت پر پیرس کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم کل منعقد ہونے والی بیسٹائل ڈے پریڈ کی تقریب پر مہمان ذی وقار کی حیثیت سے موجود رہیں گے، جس میں بھارتی فوج کی 3 شاخوں کا دستہ شرکت کرے گا۔ دورے پر روانہ ہونے سے پہلے وزیر اعظم نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں ممالک دفاع، خلا، اقتصادیات، تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، کلچر اور لوگوں سے لوگوں تک کے رابطے جیسے شعبوں کو مستحکم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تال میل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال بھارت اور فرانس کی شراکت داری کے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم فرانس کے دورے کے دوران وہاں بھارتی برادری سے بھی ملاقات کریں گے۔ دورے کے دوران دوسرے مرحلے کے دوران وزیر اعظم 15 جولائی کو ابو ظہبی پہنچ جائیں گے، جہاں UAE کے صدر اور وہاں کے حکمران شیخ محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کریں گے۔ آکاشوانی کے نامہ نے خبر دی ہے کہ وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کا دورہ توانائی، تعلیم، طبی نگہداشت، فوڈ سیکیورٹی، فنٹیک، دفاع اور کلچر کے شعبوں کو فروغ دینے میں کلیدی نوعیت کا ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دورے کے دوران کئی عالمی نوعیت کے معاملات کو بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ دراصل وزیر اعظم نریندر مودی آج بعد دوپہر پیرس پہنچے، جہاں فرانس کے وزیر اعظم ایلزبتھ بورن نے ان کا خیر مقدم کیا اور ہوائی اڈے پر ان کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ دہشت گرد تشدد کو بڑھاوا دینے، نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف راغب کرنے اور مالی وسائل جٹانے کے لیے نئے وسیلے تلاش کر رہے ہیں۔ آج گروگرام میں کرائم اور سیکیورٹی سے متعلق 2 روزہ G20 کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مالی ٹرانزیکشنز کے لیے دہشت گرد نئے طریقے اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، جو سیکیورٹی نظام اور ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سماج دشمن عناصر اور عالمی قوتیں اقتصادیات اور شہریوں اور حکومتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سائبر جرائم سے نمٹنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطحوں پر باہمی اشتراک کی فوری ضرورت ہے۔ ڈیجیٹل شعبے میں پچھلے 9 برسوں کے دوران حکومت کی حصول یابیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت 840 ملین بھارتی آن لائن کام کرتے ہیں اور 2025 تک مزید 400 ملین بھارتی شہری ڈیجیٹل دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ G20 کانفرنس میں مختلف ملکوں، بین الاقوامی سطح کے اداروں کے علاوہ ٹیکنالوجی لیڈرز اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ کوآپریشن کے مرکزی وزیر امت شاہ نے نیشنل بینک آف کلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ نابارڈ پر زور دیا ہے کہ وہ دیہی علاقوں میں بینکنگ کے عمل کو آسان بنا کر ان علاقوں کی ترقی و خوشحالی کو یقینی بنانے میں اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ نئی دلی میں آج نابارڈ کے 42ویں یوم تاسیس کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ جس ملک میں 65% آبادی دیہی علاقوں میں رہائش پذیر ہو، وہاں نابارڈ جیسے ادارے کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 4 دہائیوں کے دوران نابارڈ نے دیہی اقتصادیات، زرعی بنیادی ڈھانچے اور کوآپریٹو اداروں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت
हासिल की है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड की बदौलत मुल्क के देहात खुद इन्हिसार बन रहे हैं और ज़रूरी शोबे जिसे देही इक़्तिसादियात की रूह माना जाता है भी तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में पिछले 9 बरसों के दौरान मुल्क ने हर एक शोबे में तरक्की हासिल की, खास तौर से गुर्बत को कम करने और ज़रूरी शोबे को मयार की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए खातिर-खा इक़दामात किए गए। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि उनकी वजारत भारत चीन सरहद के नजदीक दूर उफ्तादा इलाकों में मुफ्त दूरदर्शन DTH कनेक्शन फराहम करेगी। लद्दाख के कुर्जुक गांव में लोगों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले के दूर उफ्तादा इलाकों में बेहतर मोबाइल राब्तों के साथ बेहतर सड़क राब्तों की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत देही इलाकों की तेज तर तरक्की के लिए वादाबंद है। इस दौरान उन्होंने इलाके के लोगों के मसाइल का भी जायजा लिया और यकीन दिलाया कि जायज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहलगाम का दौरा करके वहां मरीजों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के सभी सेक्शनों का मुआयना किया और डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों के साथ बातचीत की। उन्होंने तिबी अमले पर जोर दिया कि वो मरीजों को मयारी तिबी सहूलियात बहाम पहुंचाने में कोई भी दकीका फरोजदाश न करे। उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया लोगों को बेहतर तबी सहूलियात और मयारी बुनियादी ढांचा दस्तयाब कराने की वादाबंद है और इस ज़मीन में मुतअद्दिद प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस N कोटेश्वर सिंह, जो J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सरपरस्त आला भी हैं, ने आज श्रीनगर में सेंट्रल जेल का दौरा करके वहां कैदियों की हालात जार और उन्हें दी जा रही कानूनी खिदमात का जायजा लिया। इस मौके पर उनके एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीफ जस्टिस ने कैदियों के मामलात और मसाइल का जायजा लेते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जायज मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने इस ताल्लुक से मौके पर ही मुतल्लिकीन को हिदायत दी। चीफ जस्टिस ने सेंट्रल जेल में कायम लीगल एड क्लिनिक का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये क्लिनिक कैदियों को बर वक्त कानूनी इमदाद पहुंचाने में एक अहम रोल अदा करता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है और अब तक 1,56,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। यात्रा के दोनों रूटों पर मौसम खुशगवार है और इंतजामिया ने यात्रियों की सहूलियात के लिए तमाम तर इंतजामात किए हैं। यात्रा के हवाले से हमारे गांदरबल के नुमाइंदे ने हमें ये रिपोर्ट दी। अमरनाथ यात्रा दिलकश हिमालय में 3,880 मीटर की बुलंदी पर वाक़ा भगवान शिव के पवित्र गुफा के दर्शन के पस मंजर में अकीदतमंदों यानी यात्रियों को अपनी तरफ खींचती है। इस यात्रा में हिंदू मुसलमान दोनों बाहमी एहतराम और इफ़हाम ताफीम से शिरकत करके एक नई फिजा को फरोग देते हैं। ये हम आहंगी न सिर्फ मजहबी और इंसानी जज्बे को जन्म देती है बल्कि जम्मू कश्मीर के कसीर और सकाफती वर्षे के हकीकी जौहर की भी मिसाल को कायम रखते हैं। अमरनाथ यात्रा न सिर्फ मजहबी फरीजा है बल्कि इस यात्रा से मुख्तलिफ ज़राए के माशी मौके भी फराहम होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि यात्रियों को हर पड़ाव पर बेहतर सहूलियात फराहम की जाए, जबकि सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और इस मामले का यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद जायजा ले रहे हैं। तवक्को की जा रही है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो इस साल रिकॉर्ड तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यात्री आकर पवित्र गुफा का दर्शन करेंगे, जबकि गुज़श्ता 12 रोज में 1.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम का दर्शन किया था। बालतल से खबरनामे के लिए मैं साबिर अयूब।
दरियास्तान जम्मू के भगवती नगर के बुनियादी कैंप से 9,241 यात्रियों का 11वां जत्था वादी की तरफ रवाना हुआ। ताहम रामबन से हमारे नुमाइंदे ने डीआईजी डॉक्टर सुनील गुप्ता के हवाले से खबर दी है कि जम्मू से पहलगाम के लिए रवाना हुए 6,035 यात्रियों को चंद्रकूट में ही रोका गया है। बताया जाता है कि पहलगाम में यात्रियों के भारी रश के पेश नजर ये फैसला लिया गया है। इन यात्रियों को कल सुबह पहलगाम की तरफ रवाना किया जाएगा। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज लंगेट कपाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी अवामी रैली से खिताब किया। लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 3 बरस पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नजरिए की अमलावरी से जम्मू कश्मीर अमन, तरक्की और खुशहाली की एक नई राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल को हल करने और उनकी राहत रसानी को यकीनी बनाने के लिए खातिर खा इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अवामी खिदमत और शफाफियत को तरजीह दे रही है। बाद में उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग के दौरान लोगों के मामलात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नामवर अदीब और शायर सतीश विमल की 4 नई किताबों की रस्म रोनमाई अंजाम दी। एलजी सतीश विमल के उर्दू शायरी मजमूए बांसुरी शाखों पर के अलावा उनकी नाम याफ्ता हिंदी तसनीफ काल सूर्य के मुश्ताक बर्त की तरफ से किए गए अंग्रेजी तर्जुमे द इफाक ऑफ सन के अलावा कश्मीरी अदबी डायरी छप से कातबात के अशरफ रावी के अंग्रेजी तर्जुमे कन्वर्सेशंस विद साइलेंस की भी रोनुमाई की। एलजी ने सतीश विमल और तर्जमाकारों को मुबारकबाद पेश की। भारत के तीसरे खलाई मिशन की चंद्रयान 3 को खला में भेजने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 25 घंटों की यह गिनती आज 1:25 पर शुरू हुई। भारतीय खलाई तंजीम की तरफ से सतीश धवन खलाई मरकज श्रीहरिकोटा में कल दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को LMV-3 और रॉकेट के जरिए से खला में भेजेगा। आकाशवाणी के नुमाइंदे ने खबर दी है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर के साइंसदान तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे रहे हैं। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म अलाउपोरा शोपियां का दौरा करके वहां ज़रूरी सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर माहिरीन को हिदायत दी कि वो फार्म में जदीद किस्म के बीज तैयार करें ताकि किसानों की पैदावार और पैदावारियत में इजाफा किया जा सके। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो मयारी बीज लगाकर अपनी पैदावार और आमदनी में इजाफा करे। अनंतनाग जिले में अफसरों की एक मीटिंग के दौरान जिले में मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर मुतल्लिक़ अफसरों को हिदायत दी गई कि वो शिया आबादी वाले इलाकों में अज़ादारों के लिए बिजली, पानी, राशन, तिब्बी सहूलियात और दीगर इंतजामात मुकम्मल करें। जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने आज DPIIT के इश्तराक से कफाड़ा में अखरोटों की ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का एक प्रोग्राम मुनक़द किया, जिसमें मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरों के अलावा 120 किसानों और FPOs ने शिरकत की। डोडा के जिला तरक्याती कमिश्नर ने आज जिले में अमलाए जा रहे जल जीवन मिशन की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिक़ा अफसरों पर जोर दिया कि 31 JJM प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के श्रीनगर रीजनल दफ्तर को बागात बरजला से मुंतकिल किया गया है और ये दफ्तर अब हजरत बल नजदीक NIT श्रीनगर में अपना काम शुरू करेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.1 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।